सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। आज बरोज़ मंगल 15 अगस्त स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर महबूब नगर की जानिब से मस्जिद अरफात पिललामारी रोड पर मस्जिद परचयम के उन्वान से बरादरान वतन के लिए इस्लाम का तारुफ पेश किया गया, जिसमें मोहल्ले के काउंसलर पापा रायडू, मौलाना अब्दुल नासिर मुजाहिरी और दीगर अफराद मोहल्ला ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तौहीद, रिसालत, आखिरत, बाहमी उख़्वत, अरकान इस्लाम, मस्जिद को बतौर एक मुआशरती मरकज़, अज़ान का तर्जुमा, कुरान का तारुफ वगैरह जैसे उन्वान पर इनको समझाया गया और इस्लाम के मुताल्लिक़ से इनके शक और शुबहात को दूर करने की कोशिश की गई और इस्लाम का तेलुगु में तर्जुमा शुदा लिटरेचर भी दिया गया। आने वाले अफराद ने इस प्रोग्राम की सताइश की और इस्लाम को करीब से जानने और समझने के इस तजुर्बे को माशरे में अमन कायम करने एक मुस्बित कदम बताया। వీళ్ళు వేరు కాదు మేము వేరు కాదు అంటే తల్లిదండ్రులు ఒకటి ఆ ఒక్క తల్లిదండ్రుల సంతానం అనబోదనం మరియు మీరు ఒకరినొకరు గుర్తించుకోవడానికి మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా మనం దగ్గరగా చేశాము. అది చదువుకుంటే మనిషి కూడా ఒకరికి అన్యాయం చేయకూడదు. కొందరి అబద్ధాలు ఆడితే కూడా కొద్దిగా అనేది మనం ఎవరు చూస్తలేరని అనుకుంటాము. కానీ పైవాడు ఒకటి చూస్తారా మనం చేసిన తప్పులు మనమే అనుకుంటాం, కానీ మన వేరే ఎవరు చూడలేము. అది చేసిన తప్పులు మనకు తెలుసుకోవాలి. అటువంటి దేవుని పూజించడానికి అష్టాంగం అంటే అష్ట అంటే 8 అష్ట అంటే 8 అంగం అంటే మన శరీర అవయవాలు 8 అవయవాలు జరగాలి. కూర్చోండి శ్రద్ధ మేము చేసుకోవాలి. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज SIO महबूब नगर की जानिब से विज़िट माई मॉस्क प्रोग्राम इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए, जैसे दुनिया क्यों बनाई गई है, दुनिया बनाने का मकसद क्या है, दुनिया किसने बनाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है, इस्लाम क्या है, पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, उसके बाद आखिरत क्या चीज़ है। ऐसे छोटे टॉपिक्स पर हम लोगों ने गैर मुस्लिम हजरात को बुलाया और इससे मुतारफ़ कराया। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारा मुसलमानों का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि हम लोगों को दीन की तरफ बुलवाएं। तो हम मुसलमानों से ख़ुसूसन महबूब नगर की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि हमारा फ़र्ज़ मनसबी है, तो हम पर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे मौक़ों में जैसे विज़िट में मॉस्क जैसे प्रोग्राम है, हम उनको बुलवाएँ और इस्लाम से उनका तारुफ़ करवाएँ। तो ये प्रोग्राम SIO महबूब नगर ने गुज़िश्ता साल भी किया, इस साल भी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरे मसाजिद के अफराद से भी ख्वाहिश करते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम करें और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलवाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करें और दूसरे जो मसाजिद के लोग हैं अल्लाह ताला उनसे भी ऐसे काम करवाएं। జజాకల్లాహ్. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్థానిక మహబూబ్ నగర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మస్జిద్ పరిచయం కార్యక్రమాన్ని పిల్లలమరి రోడ్లో ఉన్న మస్జిద్లో నిర్వహించడం జరిగింది. వీటికి విశేషమైన ఆదరణ వచ్చింది. మరియు ముఖ్యంగా చుట్టుపక్కల ఉండేవారు ఈ మస్జిద్ పరిచయం కార్యక్రమానికి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖురాన్ ఆయాత్లు మరియు అదేవిధంగా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి ప్రవచనాలను చూసి చాలా వారు ఆసక్తిని చూపించడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా మనిషి జీవితం ఎందుకొరకు, అతనికి ప్రసాదించబడిన వరాలు కానివ్వండి, అతనికి ప్రసాదించబడిన అనేక సౌకర్యాలు కానివ్వండి, ఎందుకొరకు అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది, మరియు ఈ జీవితం అనేది ఒక పరీక్ష సమయం. ఈ పరీక్ష సమయాన్ని మానవుడు మంచి కొరకు వెచ్చించాలి, చెడును నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అనే ఒక ఆకాంక్షతో ఈరోజు స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మస్జిద్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా ప్రజలలో ఒక భావన కలిగిస్తూ మస్జిద్ అనేది ఒక విధమైన ప్రార్థనాలయాలకు స్థలం, పవిత్రమైన స్థలం వారికి కూడా తెలియచేస్తూ మస్జిద్లో జరిగే ప్రార్థనలను మరియు అదేవిధంగా ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా వారు చూడడం జరిగింది. మనిషి యొక్క జీవిత లక్ష్యాన్ని తెలియచేస్తూ ఇక్కడ పోస్టర్స్ను పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి
మీరందరూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వేరే మస్జిద్లో కూడా నిర్వహిస్తూ మస్జిద్ పరిచయం కార్యక్రమాన్ని ఎదుటి వారిని కూడా తెలియచేస్తూ మన యొక్క బాధ్యత అని ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ ఇస్లాం బోధించే బోధనలను ఇతరులకు తెలియచేయాలి, ఇస్లాంలో ఉండే మంచిని వేరే వారికి తెలియచేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. मोहतरम हजरात, आज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरला मरी रोड पर जो मस्जिद है, मस्जिद अरफात, मस्जिद परिचय बोल के एक प्रोग्राम रखा गया था SIO की जानिब से, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक़ से तरफ से. ये असल में क्या है, गैर मुस्लिमीन में मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सी गलतफहमियाँ हैं. एक तो जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिमीन में काम करते हैं. मैं एक विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी के पास बैठा हुआ था, मैं घर पे उसके, तो उसके ताबदान में भगवद गीता रखी हुई थी. तो मैं उसको मुखातब करके बोला कि तुम्हारा भगवद गीता में फ़लाँ श्लोक नंबर में आपको विग्रह आराधना यानी मूर्ति पूजा से आपको मना किया गया है, फिर भी आप मूर्ति पूजा करते हैं, क्या बात है तब. तो उन्हें वो आदमी बोला कि मूर्ति पूजा मुसलमान भी करते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भी करते हैं, सब कुरान में भी है मूर्ति पूजा मना किया गया है, फिर भी जो है मुसलमान करते हैं. तो सब मैं बोला नहीं मुसलमान तो जो है मूर्ति पूजा नहीं करते, हो सकता बहुत से दूसरे गुनाह कर रहे होंगे, मगर मूर्ति पूजा वो हरगिज़ नहीं करते. तो झट से वो बोला भी मुनीर मस्जिद क्या है, ये बाबरी मस्जिद क्या है. तो वो ये समझ रहा कि बाबरी मस्जिद नाम जैसा उनके पास मंदिर का नाम जो है उसकी अंदर जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के नाम से वो मंदिर का नाम रहता, ऐसा राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है ऐसा. तो वो मूर्ति वो कालिका देवी की मंदिर है, तो वो अंदर जो मूर्ति है वो मूर्ति के नाम से वो मंदिर का नाम रहता. तो वो ये समझ रहा बाबरी मस्जिद बोले तो बाबर की इबादत करते हैं लोग, वो मस्जिद है. मुनीर मस्जिद जहाँ पर मुनीर बोल के एक बुत है, मूर्ति है, उसकी पूजा करते हैं, वो ये समझ रहा हो. तो बहुत अफसोस की बात है कि हम 70 साल से जो हमारी 77 साल हुए हमारी मुल्क को आज़ाद होकर, अब तक हम हमारे बरादरान वतन में मस्जिद का भी तारुफ नहीं करा सके. हालांकि हम दावत की ज़िम्मेदारी हमारे पे है, तो इसी के ज़िम्मेदारी को पेश नज़र रखते हुए ऐसा ही वो लोग प्रोग्राम करते हैं. यहाँ पर भी एक प्रोग्राम रखने का वो लोग इरादा ज़ाहिर किए, तो हम उनका इस्तकबाल करें. अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से हम वहीं थे और बड़ी तादाद में जो है यहाँ के जो ज़ी असर अफराद है, वो ज़ी असर अफराद को भी बुलाया था, आवाम को भी आए थे, आवाम को भी बुलाया, और ज़ी असर जो लीडर किस्म के लोग रहते हैं यहाँ के, जी हमारे काउंसिलर साहब हैं और दूसरे जो है लीडरान हैं बहुत से जी पार्टियों के, उन तमाम को बुला के उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आखिर ही उनके सामने मस्जिद का तारुफ़ करवाया. मस्जिद में सर्वेश्वर जो है, जो सबको जो है दुनिया और आसमान, ज़मीन और आसमान को जो बनाया है, उसकी यहाँ पर पूजा होती है, उसकी यहाँ आराधना होती है, उसकी यहाँ प्रार्थना होती है जी, उसको यहाँ पर सजदा किया जाता है. तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज में उनके सामने तारुफ़ रखे. मस्जिद में क्या एक्टिविटीज़ क्या है उनको बताया गया कि गीता के अंदर भी है कि वो खुदा को उनके पास वो लोग समझते हैं कि वो खुदा का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है उसको. तो मैं बताया देखिए भगवद गीता के एतबार से भी मस्जिद में कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं. जैसा भगवद गीता में है वही बात कुरान भी कहता है, जो कुरान कहता है वही बात गीता भी कहती है कि वो खुदा को जो है कुछ सिफ़ात है वो पैदा नहीं होता, मौत नहीं आती जी, आँखों को नज़र नहीं आता. ये सब बातें जो कुरान में हैं, ला तुद्रिकुल अब्सार जी, जो बातें कुरान में हैं वही बातें तकरीबन जो है जी उनके मजहबी किताबों के अंदर भी है. तो इस तरह मस्जिद का तारुफ़ और खुदा का तारुफ़ और अज़ां की मीनिंग्स, अज़ां का मतलब क्या है, वो लोग आम तौर पे समझते हैं कि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से किसी अखबार में पढ़ा था मैं कि उन्होंने बस में बैठकर सफ़र कर रहे थे, कोई बाजू में कोई ऑफिसर किस्म का आदमी था, उसके सामने तौहीद की बात रखी
एक खुदा की इबादत करने की बात रखी। तो झट से वो बोला कि आप रोज़ाना अकबर की पूजा करते हैं, आप रोज़ाना 5 मरतबा अकबर अकबर बोल के मस्जिद से आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर बोल के। तो वो ये समझ रहा कि वो मस्जिद में अकबर जैसा श्री राम एक बादशाह थे और वो लोग बादशाह श्री राम की इबादत करते, वो लोग पूजा करते। वही लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह श्री राम एक बादशाह थे, उनकी इबादत पूजा करते हैं हम लोग। और ये लोग जो है बाबर की पूजा करते हैं। बाबर भी एक बादशाह था, एक चक्रवर्ती था। तो वो लोग जो है गलत फहमी में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अज़ान का तारुफ़ और आखिरत का तारुफ़, मरना ये ज़िंदगी जी आर्जी है, असल ज़िंदगी जो शुरू होती है मौत के बाद शुरू होती है। और यहाँ की आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी दुनिया की ज़िंदगी पर मुनहसिर है। यहाँ पर हम अपने आप को जी अल्लाह के अहकामात का पाबंद रखेंगे तो इंशाल्लाह आखिरत में कामयाबी होगी। इस्लाम का तारुफ़ भी कराया गया। इस्लाम के माने ये हैं अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, सरेंडर कर देना। अपनी मर्ज़ियात कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी। हम अपने मर्ज़ियात को अल्लाह के हवाले कर देना और अल्लाह जो कहा, ईश्वर जो कहा उसी के अहकामात पर चलना। ये भी बात रखी गई। और उसके अंदर जो है अल्लाह कौन है, अल्लाह का तारुफ़ भी कराया गया, मस्जिद का तारुफ़ भी कराया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी शख्सियत का तारुफ़ भी कराया गया जी। और कुरान जो सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं होती, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का पैगाम लेकर आई है। ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। और इसी किताब पर अब क़यामत तक इसी किताब को जी रहनुमा और रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान, ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए क़यामत तक ये रहबरी करेंगी, रहनुमाई करेंगी। जो इसकी रहबरी में, इसकी रहनुमाई की रोशनी में ज़िंदगी गुजारेगा, वो दुनिया में उसको शांति मिलेगी और मौत के बाद उसको मुक्ति मिलेगी। ये पैगाम हम उनको दिए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।